Hello, friends, and welcome to the world of the International Fab Talks. We are happy to be connected with you and, of course, with our celebrities and guests who join us all the way from different parts of the world. Today, we are lucky to have the presence of a very special guest. He is here on special request and demand. There are people who love him for who he is. He's always a motivational speaker and focuses on bringing transformation in the lives of people. You want to know who he is? Join us, friends, to welcome our celebrity and guest. He is Mr. Arpit Bhasin. He's joining us all the way from Delhi. He has taken out time for you and for me on the International Fab Talks. Hello, sir, and welcome to the session. Namaste, sir. Yeah, hi, namaste. Thank you so much for your time. थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आपके परमिशन के साथ आपके प्रोफाइल थोड़ा शेयर करेंगे, उसके बाद में इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। Dear friends, it's always a great honor and privilege to share the profile of our celebrities and guests who are here with us. Why? Because they have excelled in spite of the difficulties and hardships in life. We want you to learn from our celebrities and guests how they have been so focused on their life, to believe in positivity, to believe on the brighter side of life. We all face problems, we all face ups and downs, लेकिन उसका सामना कैसे करना है वो हमको सीखना है और सीखेंगे हम अपने सेलिब्रिटी के साथ आज। So I'd like to share Sir's profile. Sir is a certified fitness entrepreneur and a certified public speaker. He believes in transformation, friends. He'd love to focus on fitness, nutrition, self-development. And he's not only involved in India, he's also connected globally. There are several people who love him and respect him for the work that he does. He'd like to connect with people. You could be like connecting with him 24/7. He's always there, wanting to connect and bond with people. He helps coaches, freelancers, and people 24/7. खुद का भी फायदा देखना, दूसरों का भी फायदा देखना, खुद बड़े आगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाना, ये है उस सर का मंत्र. And he always loves to see the best part of you. And as a motivational speaker, he has been able to transform so many people's lives in the right way. आज हमारे साथ क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है मेरे लिए और आपके लिए. Join us, friends, to get to know more about Sir and his life, as to how he became a motivational speaker, how did he become someone touching the lives of people in different ways, especially through fitness, through nutrition and self-development. Of course, transformation as well. Hello, sir, and thank you so much for being here with us. हमने तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफली हमने दिया, लेकिन जी लोग जानना चाहेंगे आपसे who is the real अर्पित, अर्पित जी कौन है, तो ये सब लोग जानना चाहेंगे. आप अपने आप को कैसे वर्णन करेंगे आज? right. So basically, talking about me as a person, I only believe in one thing in my life, that जितनी ज्यादा हम लोगों की मदद करेंगे उतनी ज्यादा भगवान हमारी मदद करेंगे. So I am a firm believer of God, that is शिव जी. So जब तक I was not connected with God, I was not a person who used to think like this, who used to work like this, who used to talk to people like this, because I was not a person having a feeling of selflessness. I was a person जो हमेशा से अपनी लाइफ में उन चीजों पे फोकस करता था जिससे उसका बेनिफिट हो. जो 97% of our world is doing, just focusing on their self growth, just focusing on their things. So there is a very thin line of uh, you know learning something in your life and teaching the same to the world. So there is a very thin line. That means कि सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से एक थॉट का डिफरेंस होता है लोगों की मदद करने में. तो अगर आपसे कोई इंसान मदद मांगता है तो हमें कभी कभी इंसानों को ऐसा लगता है कि शायद मेरा यहाँ पे अगर 10 मिनट मैं ना लगाऊं और अपने पे लगाऊं तो हो सकता है कि मेरी और डेवलपमेंट हो जाए. बट इंसान ये भूल जाते हैं कि वो 10 मिनट अगर आप उस इंसान को दे दोगे तो उससे आप थाउजेंड्स ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जब उनके थ्रू आपको वो चीजें मिलेंगी इन फ्यूचर, राइट? तो दैट इज व्हाट चेंज्ड माय लाइफ. So I was not a person who was into a lot of uh, helping people and everything. But few years ago, my life changed, and today this is what you just spoke about me. That was all that just happened in my life. That's all like that only. Thank you so much for being so honest and kind.
that you said that I have learned something in my life and I would like to share that with the people. There is a thin line. Once you learn something, you want to see the goodness even in others as well. So Right. you've seen a beautiful transformation in your own self. That's wonderful, sir. Now, sir, I'd There like. are some, Mhm. there are some, so sorry to interrupt you. There are some people in life who understand, but little late, little early. So there is no right time. But there are very few people who understand this point that they are the chosen one and they have been sent to this world to be a giver and to help people. So there are very few of people like you and me who are like that. Oh, sweet. That's really nice, sir. Thank you for sharing Yeah. that. Yes. So what we have seen now with the youth, you've been a motivational speaker right through these 9+ years that you are into this beautiful transformation process. We have seen the young boys, the youth having a lot of depression. So many of them have been speaking to me and saying that हम डिप्रेशन में है, हमको जॉब नहीं मिला, या हमारा कुछ ब्रेकअप हो गया, या हमारे पेरेंट्स जब बचपन में थे लड़ाई झगड़ा करते थे हमारे सामने, तो अभी हमको वही मन में है, हम सही रास्ते पर नहीं जा पा रहे, कोशिश करें तो भी हम डिप्रेशन में गिर जा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास कौन सा सुझाव है, सर? देखिए मैम, अगर आप सुझाव की बात करोगे तो इस पर्टिकुलर थिंग के लिए जो आपने मुझसे पूछी, इससे हर कोई जूझ रहा है और almost every person is facing this. Why? Because there is a shortage of happiness because of the financial conditions in people's life. मतलब लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस की कमी इसलिए आ गई है क्योंकि उन्होंने उसको को रिलेट कर दिया है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ। मतलब जब अगर आप मेरी लाइफ की बात करेंगे तो जब मैं जॉब किया करता था, तो जब मैंने जॉब छोड़ी थी, वो इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे खुश रहना था। इसीलिए नहीं छोड़ी थी कि मुझे खुद का काम करना था। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था बीइंग अ वर्कर इन अ कंपनी वाज दैट आई वाज नॉट बीइंग अंडरस्टूड। तो मेरे पास दो रास्ते थे, ये यूथ के लिए जो आप पूछ रहे हो। मेरे पास दो रास्ते थे, एक सारी चीजें छोड़कर डिप्रेशन में चले जाना, परेशान होकर इस दुनिया से, और दूसरा रास्ता पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखना। तो आज की डेट में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है दैट इज रॉन्ग। इंसान गलत लोगों से शाम को आके बात कर रहा है। अगर वो सही लोगों से बात करे और अपने आप को समझे तो उस इंसान को कभी भी वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, दैट इज डिप्रेशन। इस दुनिया में मैम, लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान चाहिए सुनने के लिए, and there is no one in their life. They think there is, but there is not, and that causes depression. So बच्चों को, यूथ को ये चीज क्लैरिटी से समझनी पड़ेगी कि उनको वो लोग अपनी लाइफ में क्लियर रखने हैं जो लोग जेन्युइनली उनकी बात सुनते हैं, जेन्युइनली उनको सुझाव देते हैं और वो खुद खुश हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हो और आप दूसरे डिप्रेस्ड इंसान के साथ बात करोगे तो आप दोनों मिलकर कोई गलत स्टेप ही उठाओगे। पर अगर आप डिप्रेस्ड हो और कोई इंसान आप देख रहे हो जो फाइनेंशियली खुश नहीं है बट खुश है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अपनी नेगेटिविटी और अपना डिप्रेशन उनको दे दोगे, ऐसा नहीं है, वो आपको चेंज कर देंगे। राइट? सो टॉकिंग अबाउट मी, आई वॉज ऑल्सो दिस काइंड ऑफ पर्सन ओनली कि मैं अगर डिप्रेस होता था, परेशान होता था, तो अकेला हो जाता था, बिल्कुल अकेले में बैठ जाता था। बट मैंने उसके बाद नोटिस करा कि अर्पित बहुत लोड ले लिया भाई। Why not understand the things which are free in this life? तो जो यूथ है, जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उनको ये समझना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में जो चीजें फ्री हैं उनको एंजॉय करना चाहिए। तो जो चीजें आपको डिप्रेस कर रही है, या फिर जो चीजें आपकी लाइफ की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक कर रही है, या जो चीजें आपकी लाइफ में आपको इफेक्ट कर रही है, वो सारी की सारी चीजें इसके अराउंड इवॉल्व और रिवॉल्व होती है। अगर आप खुश हो तो आप सब कुछ कर लोगे, पर अगर आप दुखी हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और आपके आसपास भी कोई नहीं आएगा और आपको लगेगा शायद मैं ही गलत हूं, भगवान ने मुझे ही गलत बनाया इस दुनिया में।
बट ऐसा कुछ नहीं होता. इट ऑल स्टार्ट्स मैम फ्रॉम अस ओनली. We have to change. We have to take consistent actions. And the point which I was telling you that is free is like talking to people, reading books, watching self-development content, and less watching of reels and more watching of self-development things. Going to people's वेडिंग्स एंड मतलब सोशल जगहों पे जहां जहां इंसान को फ्री में बुलाया जाता है, एक इंसान को वो हर जगह जाना चाहिए ताकि उसको समझ आ सके कि सिर्फ वो अकेला नहीं. राइट. सो दिस इज व्हाट आई वुड से. तो जब मैं डिप्रेशन में जाने वाला था अपनी लाइफ में, तो वहां पे मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था जो आपकी इस सेशन को आज बहुत हेल्प करेगा. मैं आपको बता देता हूँ. तो जैसे ही मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. ऐसा ही बहुत सारे यूथ के साथ भी होता है कि वो क्या करें. सो आज की डेट में आप समझ सकते हो सबसे इजी क्या है, व्हाट्सएप पे स्टेटसेस देखना. राइट. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग स्टेटसेस एंड आई स्टार्टेड reconnecting with the world. I was not reconnecting again. So I used to see that कभी कभी लोग आप आज इंडिया में लोग स्टेटस में डालते हैं कि किसी का फ्यूनरल है, हमें मंदिर में वो क्रिया टाइप आपने सुना होगा इंडिया में होता है, मंदिर में क्रिया होती है तो वहां पे लोग जाते हैं. तो हम तो कभी नहीं गए क्योंकि हम तो यूथ हैं, हमारा क्या लेना देना मंदिर से और क्रिया वगैरह से. तो आई somehow thought that everyone is busy. I am not busy. Instead of being depressed, why not help someone in any way? किसी के साथ रहकर देख लेता हूँ. So I took the step of going to people's families funeral and sitting with them and understanding and seeing that दुनिया में कितना दुख है, मैं खामखा थोड़ा ज्यादा दुखी हो रहा था. आफ्टर दैट वहां तक तो समझ आता है कि ये सोल्यूशन है एक इंसान का प्रॉब्लम्स को देखने का, कि वो अपने से ज्यादा दुखी इंसान देख लो समझ आ जाएगा. राइट. बट वहां पे मैंने एक बात सुनी, जो बात बहुत ही अच्छी लिखी हुई है हमारे पुराण और शास्त्र में. दैट इज वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड. सो हम एक गलती करते हैं अपनी लाइफ में, हम लोगों की बातों पर ट्रस्ट नहीं करते. हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं. भगवान यानी कि गॉड, दैट इज सुपर नेचुरल पावर, ऑलवेज टॉक्स थ्रू पीपल टू अस, बट वी डोंट अंडरस्टैंड. So that was the day which changed my life 360 degree. I became a motivational speaker also. I became a self-development coach also. Till that time, I was doing a limited work. But today, I'm helping a lot of females all over India in PCOD, thyroid, and everything in fitness, and helping a lot of people being financially independent, helping a lot of people being mentally independent, and helping a lot of people being physically independent as well. I had a thought, but it came into reality when I understood the truth of life. That is, whatever I'm speaking to you, it is meant for you through the divine powers. So that is what people don't understand. They think that they will get all the solutions by themselves. No, people will only help you. This life is all about people. So people will only help you. You just have to choose the right people. If you talk about me, I read book. So when I read book, I think that someone is talking with me. कोई अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी लाइफ की कहानी वो लिख कर चला गया, मुझे सुना रहा है कि ऐसे ऐसे होता था, ये होता था. तो बिकॉज ह्यूमंस लव स्टोरी टेलिंग, राइट. सो दिस इज व्हाट हेल्प्ड मी टू गेट आउट ऑफ ईच. मैंने कभी डिप्रेशन का डी भी नहीं देखा अपनी लाइफ में. वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं बचपन से ही क्लियर था कि मेरे को ह्यूमंस के बीच में ही रहना है हमेशा. मुझे अकेला रहना ही नहीं ना यार. अकेला रह के मिलेगा क्या? अकेला तभी रहना है जब मुझे कुछ सीखना है, या फिर मुझे कुछ पढ़ना है, या मुझे वर्कआउट करना है. सो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, कि इंसान को खुद की सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जिससे वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता. Excellent, sir. You really opened my eyes and you made me also feel good that अकेला नहीं रहना है, सभी से मिलजुल के रहना है. ये बहुत बड़ी मैसेज है, क्योंकि हम समझते हैं कि अकेले कर पाएंगे, अकेले निपटा लेंगे हम लोग. बट भगवान जो है अच्छे लोगों के माध्यम से हमारे कांटेक्ट में आ जाएंगे और हमारे मदद भी करेंगे और हम भी दूसरों का मदद कर सकेंगे. That's a राइट. wonderful message. I really like the Right. way you put that. Thank you so much. सर, अभी आप हमारे लिए इंस्पिरेशन बन चुके और रह चुके भी इतने सालों से,
लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपके जिंदगी का कोई ऐसा रोल मॉडल है या इंस्पिरेशन है, आप जो समझते हैं या दिस पर्सन हैज बीन अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर अस। सी मैम, आपकी मदर से ऊपर आपका कोई रोल मॉडल नहीं होता, क्योंकि आप अभी भी उनके साथ ही जुड़े होते हो, बस एक एमनिकल कॉर्ड जो होती है बस वही कटती है बीच में। सो मेरे लिए तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी मेरी मदर है, और मेरे लिए तो रोल मॉडल भी वही है। क्यों? क्योंकि जब जब मैं परेशान हुआ अपनी लाइफ में, तब तक मुझे सही सुझाव मिला उनसे। राइट। सो ऐसे रोल मॉडल होने को बहुत सारे रोल मॉडल हो सकते हैं आपकी लाइफ में, बट मेरा ऐसा मानना है कि आपका रोल मॉडल वही होना चाहिए जो आपकी रीच में है, जो आपकी, जैसे अब मैं हूं, अगर मैं किसी का रोल मॉडल हूं तो मैं उसको उतना ही इनपुट दे पा रहा हूं जितना मैं सोसाइटी को डिलीवर कर पा रहा हूं। बट अगर मैं उस इंसान के साथ पर्सनली कनेक्टेड हूं तो मैं उसको बोलूंगा बीइंग अ रोल मॉडल, क्योंकि उस इंसान को जब भी मेरी जरूरत है मैं उसके साथ हूँ। राइट। सो मेरे लिए, मेरे पैदा होने से लेकर अभी तक मेरी मदर ही मेरे साथ है, तो उनसे ऊपर कोई रोल मॉडल है नहीं। बट टॉकिंग अबाउट पर्सनल लाइफ, तो बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं जिनको देखकर मैं आगे बढ़ा हूं। तो जब इंस्टाग्राम आया था, इंस्टाग्राम अभी बूम में आया था 2022 में, तो लोग बैठकर रील्स देखते थे, स्टोरीज देखते थे, और मैं बैठकर म्यूट करता था। तो मेरे और लोगों में यही डिफरेंस था। मैं म्यूट क्यों करता था? क्योंकि मुझको जो कंटेंट देखना ही नहीं अपने उस 1 घंटे के अंदर, मैं क्यों देखूं? मैं फॉरेनर्स में बहुत सारे हैं, लुइस एल्विस एंड जिम क्विक एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर। इन लोगों की वीडियोस देखना और इन लोगों को ही फॉलो करना हमेशा से। फिटनेस में आई फॉलो मिस्टर गुरुमान, जो जिनको मैं 2014 से फॉलो करता हूँ, क्योंकि 2014 में दिस वाज स्टार्टिंग ऑफ माय फिटनेस एंड आई डिडंट न्यू एनीथिंग, एंड आई डिडंट नो एनीथिंग ऑफ फिटनेस। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि क्या करूं। आजकल की यूथ इसलिए परेशान है क्योंकि बहुत सारे फिटनेस गुरु आ चुके हैं मार्केट में, तो वो इसकी सुनते हैं, फिर इसकी सुनते हैं, फिर इसकी सुनते हैं, फिर अपना ही कल्याण कर लेते हैं। मैंने हमेशा से एक ही इंसान की सुनी, मैंने उसी इंसान की वीडियोस देखी, मैंने उसी इंसान की एकेडमी से सर्टिफिकेशन करी अपनी फिटनेस की, और मैंने उसी इंसान को समझा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट बोला था 2015 में, दैट वाज कि मेरा ऐसा मानना है कि ह्यूमंस में मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता अगर हम फिटनेस की बात करें। अगर मैंने वो चीज ना सुनी होती अपनी लाइफ में, तो मैं कभी भी एक अच्छा, आज थोड़ा सा अच्छा फिटनेस कोच ना बन पाता। मैं हमेशा यही सोचता रह जाता कि फीमेल्स अलग है और मेल्स अलग है, मुझे मेल को अलग ट्रीट करना है, फीमेल्स को अलग ट्रीट करना है। बट टुडे फॉर मी दी थिंकिंग इज कि ये वेट लॉस है भाई, ये वेट गेन है, तुम भी कर सकते हो और तुम भी कर सकते हो, तुम मेल हो तुम फीमेल हो, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है रोल मॉडल का होना। तो मेरे लिए तो उस इंसान का बहुत, मतलब आज तक मिला नहीं उनसे, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मिलने वाला था इस साल, बट उनका इंडिया टूर भी था, बट समहाउ गुड़गांव कैंसिल हो गया, तो हम दिल्ली में नहीं मिल पाए, पर वो ऑल ओवर इंडिया होके गए। तो जब किस्मत में होता है तभी होती है चीजें, राइट। सो अभी मिलेंगे। सो माय रोल मॉडल इन फिटनेस एंड समहाउ इन लाइफ आल्सो इज मिस्टर गुरुमान ओनली। सो एवरीबody in India, a lot of people knows him. And in life, my biggest role model is my mom. Why? Because I have learned the basic principle of life, that is consistency and being real with people from my mom. कि भाई रियल रहो, पैसा होना या ना होना डिफाइन नहीं करता आपके रियल होने से या ना होने से। तो इंडिया में पैसा सबसे ऊपर माना जाता है लोगों की थिंकिंग में, बट सच ये है कि आपकी खुशी और आप कैसे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सब कुछ मैनेज हो जाता है। राइट। वी शुड नॉट change ourselves because of the conditions which are happening in our life. We should be the same, right? Yes. So that was all about role model thing. यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हम आपका बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। आप बिलो 12 years बिफोर एंटरिंग द टीनेज, तो फ्रॉम द टाइम यू वर born till 12 years, एनी मेमोरेबल इंसिडेंट आपको याद है? ऐसा खास इंसिडेंट ऐसा हुआ था आपके स्कूल में या मम्मी पापा के साथ या फ्रेंड्स 12 के years साथ? की 12 years की एज में
मैम कौन सी क्लास में होते हैं हम, इफ यू रिमेम्बर? 12 years की एज में हम होते हैं। Somewhere like fifth, sixth class, I guess. बचपन तो देखो, आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज इन 8th standard, so that is also a reason why I'm into fitness today, because I lost him because of health conditions only. इंडिया में मैम एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इंडिया के लोग केमिस्ट से पूछ कर दवाइयाँ खाते हैं डॉक्टर का पैसा बचाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं एक हेल्थ कोच हूँ। लोगों को समझाता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होती है, क्योंकि देखो ना, अब पीपल हैव लॉस्ट देयर फैमिली, देयर लव्ड वंस। कोरोना आया अभी इंडिया में, इतने लोग चले गए, क्यों? क्योंकि इंडिया में लोगों को पता ही नहीं था डॉक्टर कौन है जो हेल्प करेगा। वो अभी भी केमिस्ट पे डिपेंडेंट थे, तो देर हो गई, राइट? सो मेरे पास की अगर आप बात कर रहे हो, मेरे बचपन की बात कर रहे हो, तो वो वही बचपन था व्हेन आई लॉस्ट हिम। बट द पॉइंट इज दैट बचपन से ही मैं ऐसा ही हूँ। मैं हमेशा से डिफरेंट किड था, और चुलबुला टाइप, सबसे ज्यादा मजाक करने वाला, बैक बेंचर, हर इंसान के साथ हंस मुख होकर रहना, खुश रहना। एंड इंसिडेंट तो ऐसे मुझे याद नहीं है, पर हर बच्चे को वही याद होता है बचपन में, वो हाइड एंड सीक खेलना अपनी गली में, बेल बजाकर भागना। तो ये सब करा है। मतलब बचपन में मेरी लाइफ अभी तक जो रही है वो ऐसी ही रही है, रोलर कोस्टर रही है, बट फन में रही है। मेरा जो मूड है वो हमेशा ऐसा ही रहा है, खुश। पता नहीं है, शायद आई एम द चूजन वन, इसलिए मैं ऐसा हूं। बट मैं टेंशन नहीं लेता। मैं बचपन में भी नहीं लेता था। दे दोगे तो ठीक, नहीं दे दोगे कुछ तो ठीक, आई एम ओके। मैं कभी जिद नहीं करता था, मम्मी मेरे को चाहिए चाहिए, तो ठीक है। मतलब इतना ही याद है, मतलब और ज्यादा हमने कुछ देखा नहीं हो। कि मेरा भाई भी है, बहन भी है, तो उन उन दोनों को देखते देखते निकल गया बचपन तो कि वो क्या कर रहे हैं। Because your subconscious mind only remembers things from your past, from your childhood. Your conscious mind is not, your conscious mind won't make you remember anything from your 12 years of age. But मुझे जहाँ तक याद है, ऐसा ही निकला है। फन, हाँ, एक्सीडेंट भी हुआ, एक दो छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए बचपन में। मेरे सर के ऊपर से स्कूटर निकल गया, मतलब बड़ी बड़ी चीजें भी हुई। बट वो सब अब फन लगती है सुनने में कि मैं एक्चुअली, ये इंसिडेंट आपने कहा ना कुछ छोटा इंसिडेंट याद हो, तो मुझे ये इंसिडेंट याद है, मेरे लाइफ का पहला एक्सीडेंट। सो वो 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी बचपन में। तो 1 रुपए की 4 टॉफी लेनी थी, तो मेरी सिस्टर के साथ मेरी मम्मी ने मेरे को भेजा था कि जल्दी से घर आ जाना। तो मेरे पास 1 रुपया था, तो मैंने क्या करा, मैंने उस दिन अपनी बहन के हाथ पे काटा और मैं भाग गया। तो मैं भागा, जैसी भागा, सामने से ट्रैफिक चल पड़ा, एंड मैंने दुनिया छोड़ दी थी मेरे हिसाब से तो। बट दैट वाज माय फर्स्ट एक्सीडेंट, जिसका निशान मेरे सर पे है पीछे। तो ये भी एक इंसिडेंट था। उस दिन ये कसम खा ली मैंने कि भैया अगर हमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो मेरे को उसको परेशान नहीं करना, क्योंकि वो इंसान परेशान हो जाता है। क्योंकि मेरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनकी, बचपन में छोटा था तो एक ये इंसिडेंट याद है मेरे को। और हाँ, एक बहुत ही विचित्र इंसिडेंट जिससे मुझे फील होता है कि मैं अलग हूँ, मैं अलग से हरकतें करता आ रहा हूँ बचपन से। तो मेरी मदर माय मदर यूज्ड टू गिव मी ऑरेंज जूस डेली when I used to come from school. So one day I came back and there was no orange juice, so I took out the all out and I drank it. I thought this is an orange juice. मैं तो मुझे वो चीज बहुत याद आती है, तो मुझे बहुत हंसी आती है कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया भाई। मैं छोटा था, 5 6 7 साल का होऊंगा। मैं घर आया, मैंने कहा यार जूस, मतलब ऑरेंज जूस है, मम्मी ने इसमें शीशी में रखा हुआ है। मैंने खोला, मैं उसको पी गया। हालांकि अब जिंदा हूं वो अलग बात है। बट ऐसा हुआ बचपन में। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं, याद करने पे आओ तो बहुत कुछ याद आ जाता है। बट अभी ये दो तो मुझे याद थे, फनी इंसिडेंट्स ऑफ माई लाइफ। जी सर, जी सर। Like, for a moment I was like shocked, and then again, ऐसा ही है, मतलब
याद आता है तो फिर इंसान को फिर हंसी तो आती है ऐसी चीजों पे। जी। राइट। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो या मच। सर, अभी हम ये जानना चाहेंगे, खुद के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? व्हाट डू यू लव अबाउट अर्पित? कि मैं पागल हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अलग हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वो सब हरकतें करता हूँ जो दुनिया नहीं करती, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ऑन दिस वीडियो यू कैन फील द इमोशन व्हाट आई एम सेइंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जो भी करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह से लेकर रात तक अपने रूटीन में निकल जाता हूँ, निकल जाता है मेरा पूरा दिन, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने रूटीन को मैनेज करने में इतनी प्रॉब्लम्स झेली हैं पिछले इतने सालों में, इतने फंक्शंस, इतना कुछ। बट मैंने ये डिस्कवर करा कि मैं और प्रोडक्टिव था और अच्छे से एंजॉय कर पाया उन फंक्शंस को भी और उन चीजों को भी, अपने रूटीन की वजह से। बीइंग इन इंडिया, यू कैन नॉट फॉलो रूटीन बिकॉज nobody has a routine. Understanding? I take money from people to teach them routine. That means कि people are unhealthy in India. Why? Because they don't have a routine. I uh, had a session with you today 12 p.m. But there is a routine of me going to temple for 1 hour. I went, then I came back, then I had my meal, then I had my fruits. Then I told you I will be late for 3 minutes, only 3 minutes. मैं वो भी ना लेट होता, छोटा सा एक्स्ट्रा काम था वो निपटाना था। बट मेरे को बस सिंपल सी बात समझ आती है, लिव इन द मोमेंट। आई लव माई सेल्फ, वाई? बिकॉज आई एम इन द मोमेंट। मैं कोई भी चीज पकड़ता हूं तो वो सिर्फ वही चीज पकड़ता हूँ, वन थिंग एट अ टाइम। 12 से 1 मतलब आप, तो मतलब आप इंटरनेशनल फैक्ट टॉक्स, मतलब आप तो आप, बात खत्म हो गई। मुझे आगे पीछे कुछ समझ नहीं आता, मुझे उसी टाइम वो जो मैंने सोच लिया वही समझ आता है। मैं आप मेरे साथ रिसेंटली कनेक्ट हुए हो मैम, आपने देखा होगा मैं बहुत सारी स्टोरीज डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे। पहले अजीब लगता था, आज भी देखता हूं तो कोई नहीं डालता इतनी स्टोरीज। अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ मेरे पूरे सर्कल में जो अपना सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन दिखाता हो अपनी स्टोरी में। तो इसलिए आई लव माई सेल्फ। दुनिया बोले कुछ भी, मुझे पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे 3 या 4 साल बाद वो ऐसी जगह ले जाने वाला है जो मैंने सोचा भी नहीं। क्योंकि मैं आपसे भी अगर आज बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी ऐसे ही पहुंचा हूँ। राइट? सो आई लव वट एवर आई डू, दैट इज वॉट आई लव माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ। तो मुझे वंडरफुल। हर चीज पसंद है, जो भी करता हूँ मुझे सब पसंद है। सुबह से लेकर रात तक मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, मुझे बहुत खुश हूँ। आज मैंने वर्कआउट नहीं करा, आज मैं आपके सेशन के बाद वर्कआउट करने वाला हूँ। मेरे जिम में कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिम में जैसे आप मेरा कोई क्लाइंट आता है, मैं अपने जिम में हूँ अभी आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई क्लाइंट आता है तो हम मुझे 10 एक्सरसाइज अपने अपने दिमाग में याद होती हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हमें जितनी मर्जी नॉलेज हो हमें 10 चीजें तो याद आएंगी, अचानक से 25 चीजें तो याद नहीं आ सकती ना। तो आज मैंने सोचा यार कि अर्पित क्या कर रहा है, तू थोड़ा जल्दी उठ गया, फैप टॉक से भी मिलना है, मंदिर भी जाना है, तो ऐसे रूटीन फॉलो होते हैं। अब तेरा जो 2 घंटे का फिटनेस का रूटीन है, आज क्लाइंट भी नहीं आया, कैसे फॉलो करेगा? ठीक है, फैप टॉक्स के बात करूंगा। बट जो एक चीज मिसिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर ली। तो मैं हर एक चीज में पॉजिटिव चीजें ढूंढता हूँ। अगर मेरे पास टाइम था आपसे मिलने से पहले, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया और मैंने आज अपनी सारे के सारे पोस्टर्स बनाए दोबारा से। मतलब जैसे हमारी बॉडी में 7 पार्ट्स होते हैं वर्कआउट के, चेस्ट, ट्राइसेप एंड एवरीथिंग। सो हर एक मसल ग्रुप के मैंने जितनी एक्सरसाइजेस मेरे जिम में हो सकती हैं उसमें से चूज कर कर मूड के हिसाब से जो हमारा मन करे हम वो करें। मैंने वो सारी एक्सरसाइज लिखकर प्रिंट करवाकर फ्रेम करवाने के लिए दी अभी आपके पास आने से पहले। तो दिस इज व्हाट आई डू। मेरे मन में आया मैं उसी टाइम कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कल होगा कुछ। मेरी लाइफ में कल नहीं है मैम, आज ही है। इसीलिए मैं इतना कंटेंट बना पाया आज तक, इसलिए मैं कर सका। आप जो पूछ रहे हो कि व्हाट आई लव अबाउट माई सेल्फ, मुझे बोलना आता है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आई नो द रियल वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और ये बड़ी मुश्किल से आया मेरी लाइफ में, इससे मैं बहुत खुश हूँ। राइट? क्योंकि मैं ना
बहुत मुश्किल से एक ऐसा इंसान बना जो आउटकम पे फोकस नहीं करता। मतलब आप मेरे बारे में कुछ भी सोच रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लाना बड़ा मुश्किल है अपनी लाइफ। फीलिंग ऑफ नॉन जजमेंट। सो मैं अपने बारे में ये बहुत ज्यादा, आई लव दिस थिंग वेरी मच अबाउट माई सेल्फ, दैट आई एम नॉट जजमेंटल। आई गिव माई टिप्पणी, I give my overview to you. I will always give my feedback to you, but I will not judge you because I don't like to be judged also. So that is what I love about myself, that I am very happy to give you feedbacks, and I'm very happy to take feedbacks as well. But I do not like to be judged, and I don't judge people because whatever you are doing, ma'am, right now is your best. I don't know what was your routine before this and what is after this 40 minutes. But I know this thing for sure, that whatever you are doing right now was out of your comfort zone. And that is what meant good for me. That is why I'm speaking a lot with you, because I know कि आप अपने comfort zone से बाहर निकल कर सेशन में बैठे हो. So for me psychology matters. तो जब से मुझे समझ आया कि मेरे लिए साइकोलॉजी बहुत, मतलब मैं लोगों की साइकोलॉजी समझ पाता हूँ और उसी अकॉर्डिंग उनको जो खाना होता है वही खिलाता हूँ, तब से मुझे खुद से प्यार हो गया था. तो इसका एक कोरिलेशन है मेरी लाइफ की पहली सेल से, जो मैं भी आपको, आप थोड़ा सा आगे चलोगे 2014 तक आओगे तो बताऊंगा. Yes, yes, sir. ठीक है. Thank you very जी. much. You explained that so well, so well. जी. To be present in the moment, to be non-judgmental, राइट. very nice. And so many beautiful things you've given in the form of that answer to that question. बड़े बड़े messages वहां पर छुपे हैं जहां पर आप शेयर करें. I love myself for who I am. That's really nice. चाहे लोग कुछ भी कहे, I love myself. मुझे मालूम है मुझे मैं क्या कर रहा हूँ. Yes, that's really nice. So that's beautiful. Lots of hidden messages in that. Now, sir, अभी एक क्वेश्चन ऐसा है, लोग आपको कैसे याद करें? अर्पित जी को किस बात के लिए ये दुनिया याद रखे? ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है मैम, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है. यानी कि माय पर्पस ऑफ लाइफ इज, जब मैं इस दुनिया से जाऊं और मेरे क्रिमेशन पे दुनिया आए, तो या तो आपके क्रिमेशन पे इंसान इसलिए आता है कि आपने उसकी फाइनेंशियली मदद की होती है, या क्रिमेशन पे इसलिए आता है कि आप उसके घर वालों के क्रिमेशन पे गए थे, या कोई इंसान इसलिए आता है कि आपने उसके साथ आपको कोई फिजिकल बॉन्ड भी हो सकता है, इसलिए आता है. मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बड़ा क्लियर है मैम. आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल. आई डोंट हैव अ गोल फॉर दैट. आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल financially, mentally, and physically. Physically, I have mastered, in which I am fitness. Mentally, I am helping people through my videos and through my daily videos. आज की लाइफ टिप, आज की लाइफ टिप. I don't like promoting that thing, but I'm telling you that it has been 140 plus days. Daily, I'm making a video of आज की लाइफ टिप. Daily, I'm going to a temple and I'm making a video. So that is my routine, but I don't promote it because it is for people. I don't want money from that. Before I used to make videos, now I make live video and share on my status and my reels. So my purpose is getting stronger and stronger day by day. I want people when I go from this world to say that यार ये बंदा था जिस बंदे ने इस टाइम पर यहां पर मेरी मदद की थी इस एक्सपेक्ट में. टेक्निकली आंसर होना चाहिए इंसान के पास. इंसान ये ना बोले कि इसने यार मेरी हेल्प की थी. नहीं भाई, मैं मेंटली अटका हुआ था तो अर्पित भाई की एक वीडियो देखी, मुझे समझ आ गया मुझे कहाँ पे वर्क करना है. मैं फिजिकली अटका हुआ था तो अर्पित भाई ने बोला भैया ये गलत खाते हो आप, ऐसे खाओ. आप ये गलत वर्कआउट करते हो, आप ऐसे वर्कआउट करो. राइट. मैं फाइनेंशियली अटका हुआ था तो अर्पित भाई ने मुझे बताया कि आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हो, आप इस स्किल को सीख सकते हो, इससे पैसा बना सकते हो. आप पैसा कैसे बना सकते हो, अपनी 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 और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये समझाया अर्पित भाई ने. तो जब मैं जाऊं तो इंसान के मुंह पर होना चाहिए कि अर्पित ने हमारी मदद करी. और जब भी हम उसको बोलते थे
कि अर्पित थैंक यू, तो वो आगे से बोलता था एवरीथिंग इज डन बाय गॉड थ्रू मी, आई एम नो वन. So this is what I visualize daily, ma'am. I visualize, I close my eyes and I daily visualize that I am driving my Mercedes CLA 200 and one of the transgender came to my glass of my car. I opened the mirror and she said, "Give me some amount. I am so wealthy. I visualize this daily. I'm so wealthy and I'm so rich. I just take out the 500 or 2000 note and gave her and when she said thank you, then I say to her that, Dekh bhai, I am no one. Whatever is done by God. So that is what my purpose of life is. People should remember God through me, not me. मुझे नहीं रिमेम्बर होना मैम, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में ना रिमेम्बर होकर. मैं चाहता हूँ कि भैया बंदा ये बोल दे कि भगवान के थ्रू अर्पित ने मदद की थी भाई, अर्पित को भेजा था भगवान ने मेरे पास. अपनी वाहवाही कराए क्या करना है मैम, अपनी वाहवाही से कुछ नहीं मिलता. इंसान अगर अपने इतने इतने भी कर्म अच्छे कर लेना जितने मैं बता रहा हूँ आपको, उतने में भी उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी. रात को सोने से पहले बस फीलिंग आनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ. वो फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर वो फीलिंग आनी बंद हो गई ना, उस दिन सब खत्म हो जाता है. वो तभी आती है जब आप ये सोचो कि आप भगवान नहीं हो. भगवान भगवान है, आप सिर्फ हेल्प कर रहे हो लोग. दैट इज व्हाट आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड. Beautiful, sir. You have such a beautiful mind. आपका सोच विचार इतना अच्छा है कि भाई ये मेरे खुद का नहीं है, वो भगवान का देन है. वो जो भी कर रहा हूँ मैं, it is all the blessings of God. I'm just carrying out the work of God. And that's really nice. So you are helping people to develop a good physical fitness, to be through your emotional talks and emotional videos and motivational videos. You're connecting with them psychologically to improve themselves. That's really nice. And as well as enabling them to grow financially, showing them the right path. That's really And wonderful. how it happened, one day I was sitting with my friend in a club. I was talking about my finances, that I am stuck in this thing. A person came accidentally. He came and he paid my bill. He called the waiter. उसने वेटर को बोला अर्पित भाई का बिल मैं दूंगा. मैंने बोला भाई क्या हो गया, पागल हो गया, मेरे पैसे क्यों दे रहे हो. तो उसने मुझे आगे से जवाब दिया, भाई एक दिन मैं बड़ा परेशान था, मैंने तेरी वीडियो देखी, मजा आ गया, मेरा मेरा माइंड सेट हो गया, तो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएगा. तो समझ आ गया ना मैम, कि जो सोचा है वो हो रहा है, तो अब करते रहो. प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, ये तीनों प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हमेशा चलती रहेंगी मरने तक. तभी तो हम ह्यूमंस हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो सतयुग में पैदा हुए होते ना मैम. हम कलयुग में है मैम. ये सब चलता रहेगा. आज अंबानी के पास भी इतना पैसा है, वो ही स्टिल इज फाइंडिंग एवरीथिंग इन हिज हैंड ना. जाना पड़ता है ना, हर चीजें निभानी पड़ती है ना. तो ये सब तो चलता रहेगा, बट इट इज व्हाट आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि यू शुड बी क्लियर इन तीनों एक्सपेक्ट्स में. अगर हम मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूं, बट मैं मानता तो हूँ खुद को, तभी तो जी पाता हूँ अच्छे से. People have scarcity in their life. I don't want that scarcity in their life. They should know that who they are. Once people understand what exactly they are, they start loving themselves. And when they will love themselves, बस मेरा पर्पस पूरा हो गया ना मैम. इंसान खुद से प्यार कर रहा है, अपने आप बोलेगा. मेरा पर्पस सिर्फ इतना सही है मैम लाइफ का, क्योंकि मेरी बाकी सारी चीजें चल ही रही हैं उसके साथ साथ. राइट, दैट्स इट. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much for sharing your thoughts on that जी question. Thank you. Sir, जी इस दुनिया में किस तरह के बदलाव आप देखना चाहेंगे? मैम, सच बताऊं तो किसी भी तरह का नहीं. दुनिया में तो मुझे कोई बदलाव चाहिए ही नहीं, क्योंकि दुनिया चलती रहेगी जैसे चल रही है. बदलाव चाहिए इंसानों में. ये जो इंसान है ना आजकल, मर गए हैं अंदर से. मैं कोर नॉन वेजिटेरियन था टिल द टाइम आई बिकेम स्पिरिचुअल. तो यहाँ तो लोगों को नॉलेज नहीं है.
या लोगों को ज्ञान नहीं है, या लोगों को समझ नहीं आ रहा कि साइंटिफिक रीजंस भी हैं अपनी लाइफ में चीजों को छोड़ने के, पर लोग नहीं छोड़ रहे। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इस पे बात करने लग जाऊंगा आपसे अभी तो ये टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता। मुझे बदलाव तो चाहिए लोगों में, पर सिर्फ सोच का बदलाव चाहिए। मैं फिटनेस कोच हूँ और मैं वेजिटेरियन हूँ। लोगों को लगता ही नहीं कि आज मेरे मसल्स हैं, सब कुछ है, तो मैं वेजिटेरियन कैसे हूँ? क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन पता है। लैक ऑफ नॉलेज इज लीडिंग पीपल टू डू सिंस इन लाइफ। आई वॉन्ट दैट थिंग टू बी चेंज्ड मैम, कि उन्हें नॉलेज हो। सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग अपनी लाइफ में सिंस कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया बिल्कुल परफेक्ट है मैम, लोगों में प्रॉब्लम है। आप और मैं कैसे बात कर रहे हैं आज, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस ऐसा है ना, तभी तो आपने मैसेज करा होगा, मुझसे बात करी होगी। आप जैसे और लोग क्यों नहीं दिखे मेरे को आज तक? सिंपल सी बात है ना मैम। और मेरे ऐसा और बंदा क्यों नहीं दिखा होगा कोई? क्योंकि मैं अलग। सो लोगों में, आप समझ रहे हो, दुनिया सेम चलेगी। हमें लोग ही देखने हैं किन में क्या प्रॉब्लम है और सॉल्व करनी है। तो मेरे लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहता हूँ लोगों में, कि वो अपने लाइफ पे ध्यान दे। अगर उन वो, फॉर एग्जाम्पल अपने क्लाइंट को बोलता हूँ, भाई अगर तू मोटा है तो तू मोटा है, इसे मान। मान क्यों नहीं रहा? जब हॉस्पिटल के बेड पे होगा तब मानेगा क्या? क्यों पतला हो के लड़कियों को फोटो खिंचवानी है, जब वो खुद पतली हो सकती हैं? मैम, हर चीज का कोरिलेशन है। If you don't have financial education, you suffer mentally and physically. If you don't have physically education, you suffer mentally and financially. So everything is correlated ना मैम। अगर आप अनहेल्दी होते जा रहे हो, अनफिट होते जा रहे हो, तो आप हर शादी में नए कपड़े खरीद रहे हो, हर फंक्शन पे नए कपड़े खरीद रहे हो, तो आपका पैसा जा भी तो वहीं रहा है। बट अगर आप फिट हो, आप परफेक्ट हो, तो आपको जरूरत ही नहीं है ना अपने पैसों को स्पेंड करने की, आप बचाते जाओगे। तो ये बहुत चीजें हैं जो इंसानों में बदलनी चाहिए मैम। दुनिया तो डेवलप होती रहेगी मैम, ये तो अच्छा है। आज इतना सपोर्ट, इतना हेल्प मिलता है अपने को ये सारी चीजें करने में। मैं एक वीडियो बनाता हूँ मैम, वो वीडियो डालता हूँ, बूस्ट करता हूँ, वायरल हो जाती है। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था अपनी लाइफ में एज अ कंटेंट क्रिएटर। जहां मैं सोचता था कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ यार, कोई लाइक ही नहीं कर रहा, कमेंट ही नहीं कर रहा, आज मैं सोचता ही नहीं मैम, मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ। आई पुट अ वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम टूडे एंड आई टर्न ऑफ द कमेंट्स, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स नाउ, whatever people are commenting. I just promote that video only and people text me personally on my WhatsApp and messages, Instagram. I want those people only in my life because they are ready to change, right? They're not doing time pass. So change should be in people, not in world. For you, for your the answer to your question. Yes, sir. Excellent, sir. That was a wonderful answer. That was Yeah. really brilliant. You answered that well. The change has to be within us. The world is really fine. We have to change our thought process and coordinate very well. Now, sir, हम दोस्ती के बारे में बात करेंगे। तो आपकी जिंदगी में दोस्ती क्या मायने रखता है, सर? देखो मैम, पानी पी लेना, टॉपिक अच्छा है। जी सर। जैसे मैंने आपको बताया, हर एक इंसान को सुनने वाला चाहिए। तो इसको मैं कोरिलेट करता हूँ। हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हमें एक ऐसा प्राणी मिल जाता है अपोजिट सेक्स का, जो हमारी सारी बातें सुनता है। पहला पॉइंट, सारी बातें सुनकर सिर्फ पॉजिटिव जवाब देता है। मेंटल पॉइंट बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट, जब जब हम परेशान होते हैं हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। So, हमारा ट्रू फ्रेंड कौन होता है? वो इंसान। फिर हम उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड विद दैट देन वी कॉल्ड इट अ लव मैरिज, राइट? ठीक है, ऐसा इंसान मिल गया भैया जिसके साथ रह के खुशी मिलती है।
अब इसी के अंश और इसी के थोड़े थोड़े रूप है आपके फ्रेंड्स। आपका जो फ्रेंड होता है वो फुली डेडिकेटेड नहीं हो सकता आपकी लाइफ में आपके लिए। आप अगर दोस्ती की बात कर रहे हो, दोस्ती तब बड़ी अच्छी हुआ करती थी जब हम बच्चे हुआ करते, तो हमें दोस्त दोस्त लगते थे, तो हमारी दोस्तों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी। आज दोस्तियां सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पे चल रही हैं। तो मेरे लिए दोस्ती का मतलब है साथ खड़े रहना, बस। नो एक्सपेक्टेशन, कोई फायदा नहीं है उस एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन से करो और अपने लव्ड वन से करो, जिसके साथ आपने पूरी उम्र रहना है। दोस्तों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक पर्सनल लाइफ है और वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन फील करते हैं आपके साथ रहते हुए, इसलिए वो आपके दोस्त हैं। एंड दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट करते हो आप उन पर और वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। वो आपसे वो बातें बोल देते हैं, जो बातें दुनिया से नहीं बोल पाते। दैट इज फ्रेंडशिप। अगर आपको अंदर से ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरा फायदा उठाने वाला है मुझसे अच्छी अच्छी बातें करके, तो वो आपका दोस्त है ही नहीं ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ साथ खड़ा रहना चाहता है आपके, उसको आपके साथ रहना अच्छा लगता है और आपको उसके साथ रहना अच्छा लगता है, तो वो आपका दोस्त है। तो दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप मीन्स टू मी। साथ रहना, बात खत्म। आगे पीछे लेफ्ट राइट सब बदल जाता है। अगर आप किसी के साथ खड़े रहोगे तो आप उसके दोस्त हो, अगर आप उसके साथ नहीं खड़े हुए तो आप उसके दोस्त नहीं हो। और जरूरी नहीं है कि बुरा और अच्छा वक्त ही हो मैम। हर वक्त जब उसको जरूरत हो, आप उस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो आपसे। इस पॉइंट को समझना मैम। आपका फ्रेंड आपसे एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, तब आप अगर उसके साथ खड़े हो तो आप उसके फ्रेंड हो। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आओगे और आप तब जा रहे हो, तो ठीक है ना यार, नॉर्मल है। दैट वी विल नॉट कॉल इट एज फ्रेंडशिप, वी विल कॉल इट एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज अ देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दैट। आज मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा तो तू मेरे साथ खड़ा रहेगा, ये सोच कर अगर आप जा रहे हो तो वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती इज सेम लाइक लव मैम, इट्स कंप्लीटली सेम लाइक लव। यू हैव टू बी सेल्फलेस। मेरे आज भी कुछ लोग हैं जो मेरे दिल के करीब हैं, मैं उन्हें क्लोज पीपल बोलता हूँ। मेरे एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ है मेरा, जो मेरा फन फेज है और अलग पब्लिक फेज नहीं है, वो मेरा प्राइवेट फेज है। तो मैं आज भी उन्हीं लोगों से शेयर करता हूँ, उन्हीं को भेजता हूँ। वो देखते हैं नहीं देखते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। दैट इज फ्रेंडशिप ना। वो देखते भी हैं, कभी कभी रिप्लाई भी कर देते हैं। मेरे को उनकी साइकोलॉजी पता है कि वो किन सिचुएशनशिप में है इस वक्त अपनी लाइफ की। आज मेरा दोस्त जो मेरे 11 बजे रात को बोलता था कि भाई चल मूवी देखने चलते हैं, जोन सी मूवी देखने, तेरे साथ मूवी देखने चला करूंगा मैं, वो आज वो नहीं देख सकता मेरे साथ। क्योंकि आज उसका बच्चा है, उसकी वाइफ है, उसकी फैमिली है, उसको सब कुछ संभालना है। बट क्या उससे मेरी दोस्ती कम हो गई मैम? नहीं ना। लाइफ की सिचुएशन चेंज हो गई, दोस्ती वही की वही रहती। मेरा एक फ्रेंड है, वो जर्मनी चला गया मैम, अब वो जर्मनी में ही है। पर क्या दोस्ती कम हो गई? नहीं हुई, आज भी वही बॉन्ड है। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वो मेरे साथ रात रात तक रहता था। सो बिकॉज ऑफ आवर प्रेजेंट सिचुएशन वी शुड नॉट जज आवर फ्रेंडशिप्स। ये गलती मेरे से हुई है अपनी लाइफ में, तो अब नहीं करता मैं गलती की। तभी आई एम वेरी सॉर्टेड फ्रॉम माई माइंड, आई नो हु आर माई रियल वंस एंड हु आर माई फ्रेंड्स एंड हु आर माई लव्ड वंस, हु आर एवरीथिंग। तभी तो मैं दुनिया की मदद कर पा रहा हूँ। सो ये आपने बहुत ही डीप टॉपिक बोल दिया, इस टॉपिक पे तो पूरा दिन निकल जाएगा मैम। तो अभी इतना बहुत है। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस शुड नॉट बी देयर व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स। अगर है भी एक्सपेक्टेशन और पूरी नहीं भी हो रही तो भी इग्नोर, बिकॉज तुम्हारे साथ खड़ा है वो, राइट। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोस्ती के बारे में, उसके क्या मायने रखता है।
और दोस्त कैसे रहना है बिना एक्सपेक्टेशंस का. यस सर, दैट्स रियली वेरी ट्रू. नाउ सर, अर्पित सर को गुस्सा आता है? अगर आता है तो कब आता है गुस्सा आपको सर? गुस्सा तो सबको आता है मैम, ऐसा तो है नहीं गुस्सा नहीं आता, पर मुझे मेरा ऐसा मानना है गुस्सा सिर्फ अपनों के साथ आता है. मतलब जब आप दुनिया से डिटैच हो जाते हो तो आपको पता होता है कि ये सारे लोग टेम्परेरी हैं, तो आप गुस्सा नहीं करते. मतलब अगर आप मुझे इस वक्त अगर आप पे गुस्सा आ जाए ना मैम, तो अभी तक तो मैं श्योर नहीं हूं कि आप पूरी उम्र मेरे साथ रहोगे नहीं रहोगे. राइट, तो मैं आपको गुस्सा नहीं करूंगा. बट अगर मुझे पता है ना कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैम मेरे साथ पूरी उम्र रहने वाली है, तो समझ लो गुस्सा आ गया. मतलब मेरे को गुस्सा सिर्फ तभी आता है जब मुझे किसी लव्ड वन को ढंग से समझाना होता है वो बात जो वो नहीं समझ रहा होता, और उसके बेनिफिट की और उसके हित में होती है वो बात. सो अब मुझे बेफालतू की बातों में लाइफ में गुस्सा नहीं आता, पहले आता था. अब मैं चुप हो जाता हूँ, मेरा साइलेंस ही आंसर दे देता दुनिया को. अब मैं कंटेंट के थ्रू जवाब देता हूँ दुनिया को. अगर मुझे आप पे गुस्सा आएगा तो अगले वीडियो में समझ जाओगे आप गुस्सा क्या है. तो ये मैं चेंज कर चुका हूँ अपने माइंड को. बट मुझे गुस्सा तभी आता है जब मुझे पता हो कि मेरे किसी लव्ड वन को मेरी उस बात से चेंज होना चाहिए या फिर उस बात को समझना चाहिए, और वो उस वक्त उस बात को नहीं समझ रहा होता और वो बाद में बैठकर रिग्रेट ना करे. इसीलिए उसको समझाने के लिए मुझे वो टेम्पो हाई करना पड़ता है अपनी आवाज का, थोड़ा सीरियस होकर चिल्लाना पड़ता है, ताकि वो इंसान को समझ आए कि ये बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है यार, खामखा वो मेरे लिए, अपने लिए तो हो ही नहीं रहा है. राइट. सो दैट इज व्हेन अर्पित जी को गुस्सा आता है. अर्पित जी तभी गुस्सा करते हैं जब अर्पित जी को किसी को कोई बात समझानी हो और उनको वाकई में समझ ना आ रही हो, और वो उनकी लाइफ के परमानेंट हिस्सा हो. अगर आप ऑडियंस हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से बात करूंगा और चला जाऊंगा. अगर आप मेरी लाइफ का परमानेंट हिस्सा हो, मुझे पता है आप परमानेंटली मेरे साथ हमेशा रहोगे, तो फिर मैं आपको गुस्सा करके समझाऊं, चाहे दंड भेड़ कुछ भी करके समझाऊं, समझाऊंगा वो बात. दैट्स हाउ आई हेल्प्ड माय सिस्टर टू गेट हर 10 kgs डाउन. तो याद आया गुस्से से. मुझे गुस्सा भी करना पड़ता था बट मैंने उसका 10 किलो कम करवा दिया वेट. तो वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि गुस्सा कब आता है. जब इंसान को समझ ना आ रहा हो कि उसकी भलाई की बात हो रही है, तब थोड़ा गुस्सा कर लेता हूँ, बट पब्लिकली नहीं करता. पर्सनली गुस्सा आता है बस. पब्लिकली आई एम वेरी स्पीक लाइक दिस ओनली बिकॉज पीपल आर नॉट, मतलब लोग क्यों गुस्सा झेले मेरा, लोगों को क्या मतलब मेरे गुस्से. किसी को मुझसे कुछ चाहिए तो वो मिल रहा है, तो मैं गुस्सा क्यों करूंगा. राइट. सिंपल. जी सर, जी सर, इट्स रियली नाइस. सर और एक बात, क्या आप किसी चीज से डरते हैं या किसी चीज का डर लगता है, या यू ओके विथ एवरीथिंग, जो भी हो जाए लगता था मैं तैयार हूँ? लगता था पिछले साल तक. पता नहीं किस बात का डर था. मे बी आई वॉज मिसिंग माई फादर. That's why I was in fear. I went to महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन. मैंने वहां मत्था टेका. मत्था टेकते मेरी पूरी बॉडी कांपने लग गई. एंड आई क्राइड लाइक आई हैव मेट माय फादर. रियली आई हैड दैट फीलिंग. फ्रॉम दैट डे मैं किसी से नहीं डरता. किसी से भी नहीं. इस दुनिया में किसी से भी नहीं. भगवान से भी डरना, जब भगवान मेरे माँ बाप है तो उनसे डरूं क्यों. राइट. So recently I discovered that I was missing my father. Now I don't miss my father because I got him in the form. One second. Yeah, it's okay. So I got him in the form of God. So now I'm very happy and satisfied in my life. I do not fear anything. कुछ गलत करते नहीं तो डर किस बात का मैम. राइट. कुछ गलत करेंगे तो डरेंगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. कुछ गलत करेंगे तो ही डरेंगे, जब सब सही कर रहे हो तो किस बात का डर, डर किस बात का. दैट्स रियली नाइस. सर,
अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। रेड कलर। बचपन से। वैसे ब्लैक पसंद है आजकल पहनने में, बट वैसे रेड पसंद। जी सर। सर अभी ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपके हाथ में एक टाइम मशीन दिया गया और एक बटन दबाने से आप पुराने जमाने में चले जाओगे, वहां पर जाके आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, किसी और का जिंदगी जी के आ जाना है वहां से, थोड़ी दिनों के लिए जी के फिर लौट के आना है। अगर ये टास्क आपको दिया गया तो आप किसका जिंदगी चुनेंगे आप जीने के लिए? रीलिव सम। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। वाह। आप बिना एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके, जल्दी, यू जस्ट आंसर इट क्विकली। 100%। बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स। उस इंसान को ये समझ नहीं आया कि हिंसा और हिंसा दोनों साथ लेकर चलनी थी। आज तक हम सारे लोग बहुत अमीर होते हैं, जैसे फॉरेन में है लोग अमीर। सिंपल लॉजिक है मैम। पाकिस्तान क्यों दे दिया? हमारे मेरे प्रीडिसेसर सक्सेसर को भाग कर आना पड़ा इंडिया, सारा पैसा छोड़कर, जिस वजह से हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मैं अगर भाई उसकी जिंदगी जी लेता ना उस इंसान की, तो मैं सब बदल देता भाई उस हिसाब से। तो होता जरूर, फ्रीडम मिलता। मेरा सा बंदा महात्मा गांधी की जगह होता, मैं फ्रीडम तो ले लेता बट ऐसे ना लेता कि पाकिस्तान अलग कर दिया, लोगों को अलग करके कभी फ्रीडम ना लेता। वो उस टाइम के अलग हुए हुए आज तक हम लोग मुस्लिम और हिंदू में अटके हुए, देखो। राइट। तो ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। हालांकि मैं पॉलिटिकल भी नहीं हूँ, ना ही मैं रिलीजियस हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिम इन सब चीजों से। बट आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मेरे को आंसर याद आ गया कि मैं उस बंदे की जगह होना चाहिए था, किसी की हो ना हो, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पावर थी ना मैम। जिसके पास सबसे ज्यादा पावर थी मुझे वही चाहिए, ताकि मैं चीजें उस हिसाब से चला सकूं जिस हिसाब से मुझे चलानी थी। राइट। जी सर, जी सर। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। अभी एक क्वेश्चन, उसके बाद में रैपिड फायर राउंड को जाएंगे सर। ये क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छी गुण, माफी। आपकी जिंदगी में माफी क्या मायने रखता है सर, या नहीं तो माफी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं होती माफी मैम। माफी शब्द ही नहीं है इस दुनिया में। खत्म होता है सब कुछ। सिंपल। किसी को माफ नहीं किया जाता है। अगर माफी करना पड़ रहा है, फायदा ही क्या उसके साथ रहने का, या उस इंसान के साथ कुछ कोई भी चीज के लिए आपको कोई फायदा नहीं। प्रोफेशनली बात करोगे तो हाँ, माफी का मतलब है इंसान को कुछ समझ नहीं आया, उसने कोई गलती करी, उसको सिखा दिया भाई दोबारा मत, ये चीज ऐसे होती है। उसे माफी नहीं बोलते, उसे करेक्शन बोलते हैं। तो देर इज अ वेरी थिन लेयर बिटवीन माफी एंड करेक्शन। So you have to understand that forgiveness is from yourself, not for people. मतलब अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करोगे तो आप उसके बारे में सोचकर परेशान होते रहोगे, कलपते रहोगे। मेरी बहुत लोगों से, मतलब मेरी 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 अभी तक की लाइफ में ज्यादा लोगों से लड़ाई कभी हुई नहीं। एक दो लोगों से लड़ाई हुई, उन्हीं की गलत फहमी और उन्हीं के गलत थॉट्स की वजह से वो मुझसे लड़ पड़े। बट मैंने उन्हें फॉरगिव कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरी लाइफ का बड़ा ही क्लोज और अच्छा पार्ट थे। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो मैंने उन सब चीजों को खत्म कर दिया और उनको फॉरगिव कर दिया, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। आपसे बातें कर रहा हूँ, वरना मैं वहीं अटका रहता और कोई फायदा नहीं। राइट। तो ट्रुथ यही है मैम कि देर इज नथिंग कॉल्ड फॉरगिवनेस। इफ यू आर फॉरगिविंग तो रेडी हो जाओ, दोबारा होगा वो। वेरी ट्रू। रेडी हो जाओ, दोबारा होगा। जो इंसान एक बार करता है वो दोबारा करता है मैम। तो करेक्शन कह सकते हो आप, अगर इंसान बहुत ही तहे दिल से सॉरी मांग रहा है और उसके आंखों में दिख रहा है भैया वो बड़ा ही परेशान है और वो
वो गलती कर दी उसने, तो उसको करेक्शन कर दो कि तेरी लाइफ में ये चीज करेक्ट होनी चाहिए, तेरा ये चीज खराब है, पर तू मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखियो, तेरे लिए नमस्ते है भैया, हाथ जोड़ दिए मैंने तो, मेरे से दूर रहे। मेरे मेंटल पीस से ऊपर कुछ है ही नहीं मैम। तो मैं किसी को माफ भी अपने मेंटल पीस के लिए करता हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरे लिए माफी है अपने आप को खुश रखने के लिए, इसको माफ कर दे अर्पित। वरना ये परेशान रहेगा क्योंकि तूने इसका माफ नहीं करा, इसको लग रहा होगा कि तू इससे कुछ आगे से रिएक्शन देने वाला है। मैं रिएक्शन नहीं देता अब, मैं पी चुका हूँ गुस्से अपनी लाइफ में जो मुझे आते हैं लोगों के ऊपर। दैट्स वाई आज बहुत अच्छे से और प्यार से मेरे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं लोगों के साथ, राइट, क्योंकि माफी की गुंजाइश ही नहीं है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, कभी प्राइवेटली शेयर करूंगा आपसे। तो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, तो मैंने अपनी तरफ से तो हमेशा सब कुछ निभाया। तो उसकी लाइफ में कोई स्पेशल मोमेंट था, उसमें मुझे होना चाहिए, अगर मैं नहीं हूं तो मुझे पता होना चाहिए, राइट। बट मुझे थर्ड पर्सन से पता चला कि वो चीज हुई है, फिनिश्ड। माफी भी नहीं है मैम, अपनी लाइफ में माफी नहीं है मैम। अगर अपने ने अपना 100% दिया है किसी रिलेशन को और उस इंसान ने उस चीज को नहीं समझा, तो मेरी गलती नहीं है अब। बाय बाय। आई विल नॉट स्पेंड अ सिंगल मिनट ऑफ माई टाइम विद यू नाउ, बिकॉज आई डोंट वांट टेम्परेरी पीपल इन माई लाइफ। So I only spend my time only with permanent people, with mindset. जो बीता है वही बताया आपको। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बड़ी मैसेज है यहाँ पर। तो टेम्पररी लोग नहीं चाहिए हमें, जो अच्छे हमारे साथ रहने वाले, हमेशा सच्चे दिल से, ईमान से, तो वो लोग हमारे साथ रहने के लायक है। दैट्स वंडरफुल। And that's like keeping boundaries, giving priority to yourself, loving yourself, respecting yourself. That's really nice. Wonderful. And one more thing I would like to add, keeping yourself happy, uh, keeping boundaries around yourself, prioritizing self growth. All of this doesn't mean you don't give time to your loved ones. People, there is also a thin layer in this. People are, you know, miscommunicating with themselves about this point. भैया ये सारी चीजें जरूरी हैं, बट जब किसी और को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वो टाइम वहीं देना है। लोग कुछ ज्यादा आइसोलेट हो जाते हैं मैम आजकल। एक धोखा मिला नहीं कि इंसान कहता है भाड़ में गई पूरी दुनिया, मैं अकेला रहूंगा, मैं खुद करके दिखाऊंगा, मैं अकेला करूंगा, मैं सब कुछ अपने बलबूते पे करूंगा। नहीं मैम, यू नीड टू गिव टाइम टू योर लव्ड वंस ऑल्सो एंड योर पीपल हु आर परमानेंट। हम परमानेंट लोगों को भूल जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि कोई अपना नहीं है, राइट। सो एक एडिशन थी आपकी बात को। Excellent, excellent, sir. Thank you so much. अभी एक बड़ी क्वेश्चन, उसके बाद रैपिड फायर राउंड जाएंगे सर। दिस इज वन क्वेश्चन प्लीज, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आई हैव टेकन अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम, थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं मैम, 10-10 15 मिनट आगे कर देंगे टास्क। जो थैंक चीज कंप्लीट करनी है वो कंप्लीट करेंगे। यू, थैंक यू सर। सर जी अभी हम ट्रैवलिंग के बारे में बात करेंगे। आपकी जिंदगी में ट्रैवलिंग क्या मायने रखता है? हैव यू ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, या सिर्फ दिल्ली मैम, में ही रह चुके हैं? मैम क्या होता था कि 16 17 18 तक तो मैं, कोविड से पहले तक तो मैं दुबई मलेशिया इन सब जगहों पर गया हूँ, लोगों को समझा है मैंने, दुनिया देखी है। बट रिसेंटली आफ्टर कोविड मैं थोड़ा चेंज सा हो गया हूँ, मैं सिर्फ स्पिरिचुअली ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरी माइंड को और मेरे मन को शांति तभी मिलती है जब मैं ट्रैवल करके भगवान से मिलता हूँ। तो मेरे लिए ट्रैवलिंग का मतलब है गिविंग ब्रेक टू योर माइंड, टू योर हार्ट, टू एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ थ्रू एनीथिंग, थ्रू नेचर, थ्रू गॉड, थ्रू टेम्पल, थ्रू एनीथिंग whichever thing you are visiting after traveling. But if you are traveling and working, then you are not traveling. मेरा मानना है ट्रैवल करो तो सब कुछ छोड़कर करो, वरना मत करो, पागल हो आप। यहाँ भी परेशान हो, वहां भी परेशान हो, और जो कर भी रहा है उसे भी परेशान मत करो।
इंसान खुद ही परेशान होता है, ट्रैवल करता है, दुनिया को भी परेशान करता है, ये तो प्रॉब्लम है मैम। अगर कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है, आपको पता है वो ट्रैवल कर रहा है, तो यार वो अपने माइंड को शांति देने के लिए ट्रैवल कर रहा है, राइट? सो मेरे लिए ट्रैवलिंग का मतलब है गिविंग ब्रेक टू योर माइंड, गिविंग ब्रेक टू योर डेली हैबिट्स, गिविंग ब्रेक टू योर रूटीन्स। दैट इज व्हाई आई ट्रैवल। सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि मैं किसी रिलीजियस प्लेस ही जाता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे को मंदिर चाहिए ना, मेरा दिन